Hello, welcome everyone. So, my dear students, we will begin with chemical thermodynamics. After completion of ionic equilibrium, we will take chemical thermodynamics into consideration. Now, chemical thermodynamics, it deals with energy changes. It deals with energy changes during physical and chemical transformation. Physical and chemical transformation. क्या मीनिंग हो गया इसका? Physical and chemical transformation. So it deals with energy changes in physical and chemical transformation. जैसे physical transformation, H2O liquid getting converted into H2O vapors when heat is supplied to it. So this energy change during transformation of H2O liquid to H2O vapor, the energy change during this chemical transformation will be studied under the heading chemical thermodynamics. Now chemical transformation बहुत सिंपल. सबसे पहले तो ये combustion of alkane, that is methane, combustion of methane. During this combustion, what we see, there is a release of heat energy, and this release of heat energy is what we study under the heading chemical thermodynamics. तो यहाँ पर ये बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 and 2 4, so 2 times O2. So this is what a physical transformation, this is a chemical transformation. और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड and HCl neutralization will produce salt and water, and neutralization is an exothermic reaction, so energy is liberated during this transformation. So thermodynamics deals with energy changes taking place during physical or chemical transformation. In thermodynamics, we have to study certain terms. So terms used in thermodynamics. So terms used in thermodynamics, the first term is a system. So what is a system? So ये सब जो transformation हमने पढ़ा, this transformation is taking place in the universe, है ना? कि water liquid से vapor में बनता है, vapor से फिर वो ice कंडेंस होके सॉलिड होता है, सॉलिड को हीट करें तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. कंबशन रिएक्शन होती है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वहां हीट एनर्जी रिलीज होती है. सो ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशन हैव सम एनर्जी चेंजेस, एंड दिस रिएक्शन और this transformation will act as system for us. So what is a system? The part of universe which is under thermodynamic consideration, So part of universe which is under thermodynamic consideration. जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, तो हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें एसिड और बेस लेते हैं. वी टेक अ टेस्ट ट्यूब and here we take HCl acid, and to this we add NaOH. So what happens here? This is a test tube. To this we are adding base and acid. क्या होगा यहाँ से?
एनर्जी लिबरेट होगी, करेक्ट है। सो दिस रिलीज ऑफ एनर्जी, इसकी स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब ये पूरी जो टेस्ट ट्यूब है ये हमारे लिए सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया। इसमें जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सिस्टम? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये पूरे यूनिवर्स में हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? एक टेस्ट ट्यूब, और वो टेस्ट ट्यूब में जिसमें NaOH और HCl है, और वो जब कंसिडर कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही उसकी स्टडी कर रहे हैं हम। तो हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? जो टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो रही है उसकी स्टडी कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज सिस्टम? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन। तो ये फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हमने देखा, सिस्टम। सेकेंड टर्म है सराउंडिंग। सिस्टम के बाद सेकेंड टर्म सराउंडिंग। नाउ व्हाट इज सराउंडिंग? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is not under thermodynamic consideration. The remaining part of universe, remaining part यानी सिस्टम को छोड़ के जो बाकी बच जाएगा वो सब हमारे लिए क्या होगा? सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is not under thermodynamic consideration, which is not under thermodynamic consideration. So that is what we call as surrounding. तो अगर ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें NaCl और जो NaCl और वाटर बन रहा है by mixing NaOH and HCl. So अब क्या हो जाएगा इसमें? Outside this is surrounding, and test tube with this chemical is what? A system. So two important terms we have seen in this thermodynamic topic. One is system and another is surrounding. So system is that part of universe which is under thermodynamic consideration. What is surrounding? The remaining part of universe which is not under thermodynamic consideration. तो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही वो सिस्टम, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स इज व्हाट? सराउंडिंग। तो सिस्टम समझा हमने, अब सराउंडिंग भी समझ लिया। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए क्या रहेगी? बाउंड्री। तो boundary is the part of universe which separates system from surrounding. So that system which is under thermodynamic consideration are of basically three types. What are those three types of system? We will see. Three types of system. One is open system. Open system बहुत इजी। आप एक कंटेनर ले रहे हैं, उस कंटेनर को हीट कर रहे हैं आप, और कंटेनर में वाटर फिल्ड है। सो इट इज हैविंग वाटर हियर इन द कंटेनर। नाउ व्हेन यू आर हीटिंग वाटर इन अ कंटेनर, व्हाट हैपेंस? दिस कंटेनर क्या होगा? ये वाटर वेपर्स बन जाएंगे। यहाँ पर वाटर वेपर्स विल गो टू द सराउंडिंग, एज वेल एज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस हीटिंग प्रोसेस इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। तो ओपन सिस्टम क्या करता है? इट एक्सचेंजेस मैटर as well as energy with surrounding is what we call as a open system.
it exchanges matter as well as energy with the surrounding. तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप? बॉइलिंग ऑफ वाटर, boiling of water in a open container where matter and energy both get exchanged to the surrounding or with the surrounding. तो ये हो गया ओपन सिस्टम. सेकेंड आ जाएगा क्लोज सिस्टम. अब क्लोज सिस्टम क्या होगा? ये भी उतना ही सिंपल है. अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, है ना. तो क्या हो रहा है? हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर फिल किया, इसे हीट किया, बट नाउ दिस कंटेनर इज ए क्लोज्ड कंटेनर. इस पे हमने एक लिड रख दिया यहां पर. वी हैव प्लेस अ लिड ओवर इट और अब ये वाटर को हीट कर रहे हैं. तो क्या होगा? लिड रख देने से अब वेपर्स बाहर जाएंगे क्या? नहीं. तो क्या जाएगा सराउंडिंग में? एनर्जी. तो दिस सिस्टम हियर exchanges only energy with the surrounding, no exchange of matter, and such system is known as closed system. So closed system, it exchanges only what? Energy. Only energy with surrounding. No exchange of matter. So only energy with the surrounding. That is what we call as closed system. और इसके एग्जाम्पल को क्या लिखेंगे? बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल और क्लोज कंटेनर. तो एग्जाम्पल हो गया. वाटर को बॉईल करेंगे क्लोज कंटेनर में तो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करेगा. थर्ड क्या आ जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम. अब नेम इटसेल्फ सजेस्ट आइसोलेटेड मीन्स जो सराउंडिंग से एकदम आइसोलेट हो जाए. दैट इज व्हाट वी कॉल एज isolated system. It does not exchange matter nor does not exchange matter nor energy with surrounding. So does not exchange matter nor energy with surrounding is known as isolated system. अब इसका एग्जाम्पल क्या बना देंगे आप? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल. यस, केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट, केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट in a thermos flask, in a thermos flask. So thermos flask क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है ना. थर्मस फ्लास्क हम जानते हैं इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. इसीलिए उसमें हॉट कॉफी, टी रखे या कोल्ड वाटर हमने रखा तो वो काफी समय तक रहता है. कोल्ड और हॉट रहती है टी और कॉफी. तो थर्मस फ्लास्क इटसेल्फ इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. और उसमें अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम कैरी आउट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? आइसोलेटेड सिस्टम. So there are three types of system. System, this is a very important term in thermodynamics. It is that part of universe which is under thermodynamic consideration. And three types of system. Open system which exchanges matter as well as energy with the surrounding. Boiling of water in an open container is an example. Closed system, exchange only energy with surrounding. No exchange of matter. Example, boiling of water in a closed container or vessel. अब isolated system आ गया. थर्ड टाइप वो क्या है? It exchanges neither matter nor energy with the surrounding is known as isolated system. और isolated system का example क्या लिख सकते हैं हम लोग? Chemical reaction carried out in a thermos flask. So these are the three types of
system, open system, closed system and isolated system. Now thermodynamics properties पढ़ते हैं हम. We will study properties of thermodynamics. Properties of a thermodynamic system. तो property of a system. So there are two types of properties. Two types of it. बहुत easy है. Properties of a system. So thermodynamic system की बात कर रहे हैं. The first is extensive property. Extensive property. Those properties whose value depends upon the amount of matter present in a system is what we call as extensive property. So extensive properties, those properties whose value depends upon the amount of substance present, amount of matter or substance present in a system is known as what? Known as extensive property. अब कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता है जो अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी? बहुत इजी है. इसका सबसे पहला एग्जांपल हम एनर्जी बोल सकते हैं. एनर्जी तो मैटर मास पे डिपेंड करेगा ना, अमाउंट पे डिपेंड करेगा. 1 लीटर पेट्रोल, हाउ मच एनर्जी इट विल गिव. 5 लीटर पेट्रोल, हाउ मच एनर्जी इट विल प्रोवाइड. एनर्जी हो गया. और क्या हो सकता है आपके पास में जो मैटर पे डिपेंड, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे? तो एनर्जी हो गया. एंथैल्पी भी हम जिसे कहते हैं, एंथैल्पी. देन वी कैन हैव mass, we can have volume. मास डिपेंड करेगा ना, अमाउंट ऑफ मैटर कितना अमाउंट है तो उसके हिसाब से उसका मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा, है ना. हीट होगा, हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं हम लोग. हर एक की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है. 1 kg लिया अगर हमने वुड तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी. 10 kg वुड लिया तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी. नंबर ऑफ मोल्स, इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, amount of substance present in a system. So what is an extensive property? Those properties whose value depends upon the amount of matter or substance present in a system is known as extensive property. अब second है intensive property. Intensive property. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? Those properties whose value remains independent of the amount of matter or substance present. Independent of the amount of matter present. अब independent of the amount of matter present is what we call as intensive properties. So those properties whose value depend or remains independent of amount of matter present. What are those properties which are independent of amount of substance? जैसे temperature. अब आप
वाटर लेंगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉईल आप 1 kg लेंगे या 1 लीटर वाटर लेंगे या 5 लीटर वाटर लेंगे, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मेल्ट जो वाटर का है वो तो 100 डिग्री है। तो दैट विल नॉट चेंज कि आपने क्वांटिटी चेंज किया तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा क्या? 1 लीटर 100 से पहले ही बॉईल हो जाएगा और 5 लीटर 100 से ज्यादा समय लगेगा? नो, 1 लीटर है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होगा और 5 लीटर है वो भी 100 डिग्री पे बॉईल होगा। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। डेंसिटी अब आपको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। तो आप 10 ml वाटर लीजिए या 100 ml वाटर लीजिए, उसकी डेंसिटी कितनी कंसीडर करेंगे? 1। तो डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस। तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी पता है हमको, फ्लोइंग कैपेसिटी, कितना थिक और कितना थिन सॉल्यूशन है। जो थिक है विच फ्लोज विथ डिफिकल्टी और जो थिन होता है वो इट फ्लोज विथ इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो विस्कोसिटी इज ऑल्सो अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए कितना है मोलार हीट कैपेसिटी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये चेंज हो गया क्या? नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स that will also remains fixed, does not depends upon the amount of substance present. So intensive properties are those which remains independent of the amount of substance present. तो मोलार हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट जिसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट is another term. So there are 2 types of properties of a system: extensive property which depends upon the amount of substance present or matter present. उसके एग्जाम्पल एनर्जी, एंथैल्पी, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, all depends upon the amount. Intensive property is independent of amount. तो ये याद रखना है, इंटेंसिटी I से चालू होता एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। तो I और I का ये कनेक्शन याद रखना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। और उसके एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, all these does not depends upon the amount of matter or substance present. So this is what the other term we had seen, properties. So 2 types of property of a system. Intensive property is independent and extensive property is dependent upon the amount of matter or substance present. Now we'll move to another term, state functions. This is something interesting and to be explained. Please pay attention. State function. हमने अभी कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज देखे। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, some properties are fundamental properties. Fundamental or measurable properties. Measurable, fundamental or measurable properties. These properties, those are fundamental or measurable properties or macroscopic properties. These properties are called as state function.
अब क्या होता है स्टेट फंक्शन मीन्स एनी प्रॉपर्टी whose value depends upon the current state of a system, current state of a system, current state of a system and remains independent of the path followed is known as state function. Any property, I have to write this, है ना, तो ज्यादा आसानी से समझेगा. Any property whose value depends on current state of a system and remains independent of the path followed for the change of state is known as state function. देखिए इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे, है ना. तो क्या लिखा हमने, एनी प्रॉपर्टी whose value depends upon current state of a system and remains independent of the path followed for the change of state is known as state function. जैसे हमारे पास में एक इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट. इस इनिशियल स्टेट में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1. If the initial pressure P1, volume V1 and temperature T1 are defined or their values are known, we can easily define the state of a system, and these properties are the state function properties. So state function properties, this is the initial state and these are the state functions whose value depends upon the state of a system. जैसे ये initial state है, अब आपने इसको चेंज किया, प्रेशर P1 से प्रेशर P2 कर दिया, वॉल्यूम V1 से V2 कर दिया और टेम्परेचर T1 मेंटेन कर लिया. टेम्परेचर मेंटेन किया लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर ये चेंज किया, तो अब यहां क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अब यहां पर फाइनल स्टेट कंसीडर करेंगे. यानी ये स्टेट A इज इनिशियल स्टेट एंड स्टेट B इज द फाइनल स्टेट. तो चेंज ऑफ स्टेट कैसे हुआ, चेंज ऑफ स्टेट कैसे पॉसिबल हुआ, by change of variable properties. ये फंडामेंटल, मेजरेबल, वेरिएबल प्रॉपर्टीज है. तो चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आपने कोई भी एक या एक से ज्यादा अगर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी को चेंज किया तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा. जैसे समझने के लिए आपके पास H2O लिक्विड है, इसका टेम्परेचर फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है और इसका प्रेशर भी फिक्स है. करेक्ट है. तो ये H2O लिक्विड एट दिस कंडीशन, these values will be at initial state. सो इनिशियल स्टेट को अगर एक्सप्लेन करना है तो ये वेरिएबल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अब अगर ये H2O लिक्विड को हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O वेपर्स में, और H2O वेपर्स में चेंज हो गया तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा
और अब यहाँ टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज ऑफ स्टेट है ना बेटा, ये क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। कैसे हुआ चेंज ऑफ स्टेट? बाय चेंजिंग दिस फंडामेंटल वेरिएबल मेजरेबल प्रॉपर्टी को अगर हमने चेंज किया तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, इनिशियल से वो अपने फाइनल स्टेट में चला जाएगा। ये समझा? अब इसी को उल्टा समझने का है। व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन? Those properties whose value depends upon the initial state. Initial state में H2O में टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर है। प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर है। और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। अब आपने इसको चेंज कर दिया, इसका स्टेट चेंज कर दिया, ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया। तो क्या करेंगे आप कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसका प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम जो रहेगा वेपर फेज में है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू काय पे डिपेंड कर रही? P2 काय पे डिपेंड करेगा, T2 काय पे डिपेंड करेगा? फाइनल स्टेट पे। तो दिस वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। कि पाथ क्या है, इसको हीट करके ये लेके आया या इसको कंडेंस करके लेके आया, दैट इज इमटेरियल। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी ये P2, V2 और T2 की वैल्यू। वो काय पे डिपेंड करेगी? स्टेट पे डिपेंड करेगी। P1, T1, V1 ये काय पे डिपेंड करेगा? इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो व्हाट इज स्टेट फंक्शन? दो एनी प्रॉपर्टी, एनी फंडामेंटल measurable variable property whose value depends upon the current state. ये current state properties depends upon the current state of a system and remain independent of the path followed to bring about the change is known as state function. path कोई भी हो, है ना, ये path कोई भी हो, आप ये देख रहे हैं A से B में कन्वर्शन, ये पाथ 1 आपने फॉलो किया, आप पाथ 2 फॉलो करो, है ना। पाथ 2 को देखा आपने, जिगजैग कर दिया हमने, ये स्ट्रेट कन्वर्शन था। इस पे वैल्यू डिपेंड कर रही क्या पाथ पे? पाथ 1 से जा या पाथ 2 से जाओ, आपको जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में ये प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो स्टेट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, whose value depends upon the current state of a system is known as state function and not depends upon the path followed. जैसे कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी, वर्ल्ड में 9th पोजीशन आ गई। तो वाई सो? अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना है तो क्या बताएंगे कि इतने 1000 लाख करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है, उसका इतना कंपनीज है, ये सब है। ये सब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उसकी इनिशियल स्टेट को डिफाइन करेगा, उसकी स्टेट को डिफाइन करेगा। तो जो भी प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू वो स्टेट पे डिपेंड करती है, तो उसे हम कहेंगे व्हाट? स्टेट फंक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन की चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा? चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज। ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से एक या एक से ज्यादा किसी को अगर मैं चेंज करता हूं तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे H2O लिक्विड को H2O वेपर में कन्वर्ट करना है, बेसिकली मैं एक ही वेरिएबल फैक्टर को चेंज करूंगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर फेज में जाने से अब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर ज्यादा जनरेट होने लगेगा। वेपर कैन क्रिएट मोर प्रेशर एज कंपेयर टू द लिक्विड इटसेल्फ। सो क्या होगा अब यहाँ पर कि ये इसका फाइनल, ये इसका चेंज ऑफ स्टेट है, लिक्विड से वेपर फेज। कैसे हुआ? सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से। सो टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन।
pressure is a state function, volume is a state function, number of moles, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अलग रहेंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे. सो दैट इज द अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग स्टेट फंक्शन, दैट एनी प्रॉपर्टी whose value depends upon the current state of a system and not on the path followed is known as state function. Now next is process. What is a process? What is a process? Process क्या होता है? When physical and chemical changes, physical or chemical changes, process is what? The path followed to bring about the transformation. Path followed to bring about the transformation. जैसे physical or chemical changes in a system, going from one state to another state, going from one state to another state is known as process, or the path followed is known as process. The operations carried out to bring about the change of state is known as process. Operations carried out or path followed to bring about the change of state is known as process. And there are several types of processes. One is isothermal process. Isothermal process. What is the isothermal process? Iso means same, thermal यानी temperature. Those process where temperature remains constant. Temperature remains constant throughout. कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किया, चेंज ऑफ स्टेट किया, स्टेट ए से स्टेट बी में गए, इनिशियल से फाइनल स्टेट में गए, ड्यूरिंग दिस एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट. such process is what we call as isothermal process. यानी initial temperature T1 is equal to final temperature T2, or change in temperature is equal to 0, because T1 and T2 are identical. तो change in temperature, ये delta T क्या denote करता है? Change of any property, जैसे change of temperature, change of pressure. तो change of temperature delta T, change of pressure delta P, change of volume delta V. So isothermal process have temperature remains constant throughout, where initial temperature and final temperature are same, and change of temperature is always 0. Now in isothermal process, what more we can see? What happened to internal energy? Delta U, internal energy is also 0, because internal energy is a function of temperature. Energy is a function of temperature. Temperature को वेरी करे तो एनर्जी वेरिएशन आते जाता है. तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी. तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया. अब इसमें चेंज क्या क्या हो सकता है? चेंज प्रेशर हो सकता है, चेंज वॉल्यूम हो सकता है. चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर पॉसिबल इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. अब जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल अपने को याद रखना है. ह्यूमन बॉडी इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस. समझने के लिए कैसे रहेगा? जब हमको
ठंड लगती है, when the temperature, outside temperature goes down, what we do, we try to keep our body warm. यानी हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि विंटर में वी कवर अवर बॉडी विथ वार्म क्लोथ्स। तो आइसोथर्मल हुआ ना, हम हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन होने देंगे क्या? नहीं, डाउन होने दिया तो क्या हो गया, ऑर्गन्स हमारे सब चले जाएंगे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। वैसे ही जब फीवर आता है, अभी तो फीवर का जमाना चल रहा है, तो फीवर अगर आ गया यानी क्या हो गया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। अब इसको कांस्टेंट रखना है तो हम मेडिसिन लेते हैं सो दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। और बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, याद रखो कि ह्यूमन बॉडी हैज अ फिक्स टेम्परेचर, उतने टेम्परेचर पे रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट प्रेशर एंड वॉल्यूम मे चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि हीट एनर्जी कैन बी लिबरेटेड टू द सराउंडिंग और हीट एनर्जी कैन बी absorbed from the surrounding so that temperature should remain constant. तो next point हम लिख सकते हैं यहाँ पर, energy can be exchanged with the surrounding, exchange with the surrounding। अगर ज्यादा हीट हो गई तो एनर्जी सराउंडिंग को दे दो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम हो गया तो क्या करेंगे, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट वी टेक इनटू कंसिडरेशन इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसो मीन सेम, बैरिक बार यानी यहां पर मीनिंग है उसका प्रेशर से। तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। सो इन अ आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, that is delta P is equal to 0. Pressure remains constant. Isobaric process. अब इसके एग्जाम्पल को बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं। Any reaction, any process which is carried out in a open container in a laboratory is a isobaric process. क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 1 atm। एटमॉस्फेयर इज 1 atm, प्रेशर फिक्स है हमारे आसपास का। अब आप एक ओपन वेसल में केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो तो वो वेसल ओपन होने से उसमें जो प्रेशर एक्ट करेगा वो कितना होगा, 1 atm प्रेशर। तो जो केमिकल रिएक्शन हम ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, ओपन वेसल में कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और उसका प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, isobaric process where the pressure remains constant throughout। अब ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसमें चेंज क्या हो सकता है, इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है और क्या चेंज ऑफ टेम्परेचर पॉसिबल है एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम पॉसिबल है। चेंज ऑफ टेम्परेचर और चेंज ऑफ वॉल्यूम इज पॉसिबल इन अ आइसोबैरिक प्रोसेस। एग्जाम्पल मैंने बतलाया, याद रखेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस केमिकल रिएक्शन, और तो लिख लेते हैं यहां पर, केमिकल रिएक्शन इन अ ओपन वेसल हैज कांस्टेंट प्रेशर, has constant pressure of 1 atm. तो chemical reaction in an open vessel has constant pressure of 1 atm. तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक
isobaric process. Here the pressure remains constant. तो दो टाइप की प्रोसेस हो गई, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा आइसोबैरिक प्रोसेस. What is process? Chemical or physical changes carried out in a system going from one state to another state is known as a process. So process, path followed is what we call as process. So second type isobaric. Third type, यहाँ लिखते हैं, third type isochoric. Isochoric process. Isochoric process are those where volume remains constant. Volume remains constant throughout. So volume remains constant. यानी डेल्टा V is equal to 0. अब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ गई. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो क्या वर्क डन होगा? क्या वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखा तो वर्क डन होगा क्या? वहां पर नहीं. वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होता है तो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है. क्योंकि वर्क डन कब होगा? जब गैस एक्सपांड होगी या गैस कंप्रेस होगी, है ना. इन अ गैसियस सिस्टम वर्क कब हम कंसिडर करेंगे? व्हेन अ गैस टेकन इन अ सिलेंडर, उसको एक्सपांड करते हैं तो वर्क डन बोलेंगे. उस गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसे हम बोलेंगे वर्क डन. तो अगर हमने वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दिया तो जो वर्क डन है यहाँ पर, ये वर्क डन ऑलमोस्ट जीरो होगा. वर्क डन इज ऑलमोस्ट जीरो इन अ isochoric process. तो isochoric process where volume remains constant. अब फोर्थ टाइप लिखते हैं adiabatic process. Adiabatic process which does not exchange heat energy with the surrounding. It does not exchange heat energy with surrounding. Does not exchange heat energy with surrounding, and that's why Q is always 0. तो जो Q रहेगा, Q is the amount of heat energy. It remains constant. It does not exchange with the surrounding. Is what we call as adiabatic process. अब इसमें there can be change of temperature, change of pressure, change of volume, दोनों पॉसिबल है. अब वॉल्यूम तो नहीं, लेकिन चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को आप इजीली समझ सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एज इट डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी विद द सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसका प्रेशर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, दोनों. लेकिन जो हीट एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी. सच टाइप ऑफ प्रोसेस is what we call as adiabatic process. और ये adiabatic process कहाँ पर हो सकती है? In a isolated system, that is thermos flask. Thermos flask is an isolated system. अब isolated system होगा तभी तो, है ना, वो adiabatic possible होगा. क्योंकि isolated क्या करता है? It exchanges neither matter nor energy with the surrounding. तो थर्मस फ्लास्क में अगर हम कुछ रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो उसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोल सकते हैं, जहां पर हीट एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, वेयर चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर इज पॉसिबल बट द heat energy will not exchange with the surrounding is known as adiabatic process.
So we had seen 4 types of process: isothermal, isobaric, isochoric and adiabatic. Isothermal, temperature remains constant. Isobaric, pressure remains constant. Isochoric, volume remains constant. Adiabatic, no exchange of heat energy with the surrounding. So these are few fundamental things which we have seen today. We'll continue with this process. One more process is a reversible process that we will take in the next class. Okay, thank you so much.